اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to Star 24 News Pakistan. السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا سلیمان دن سے جنی پروگرام کی شخصیت کے ساتھ ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے پروگرام میں اس پرسنالٹی شخصیت سے ملنا ہے جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی ہو اور سوشل ایکٹیویٹی بھی ہو. تو الحمدللہ آج جس بگننگ پرسنالٹی سے آپ کو گفتگو کرا رہے ہیں وہ کہ ایور گرین پرسنالٹی کے مالک، بہترین شخصیات سوشل ورکر اپنی قوم کے بڑے. تو آج کی بگننگ پرسنالٹی گورنر شیرون گانگو صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. چلیں گے اس پرسنالٹی کی طرف اور کروائیں گے گفتگو. سر السلام علیکم. سر فرسٹ آف آل آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. مہربانی آپ کی. اچھا سر، آپ کی شخصیات کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک پہلو سیاست کا، سوشل ایکٹیویٹی کا پہلو اور اپنی زمینداری کے حوالے سے یا اپنے راج باغ کے حوالے سے آپ وہاں کے بڑے بھی ہیں. تو سر ہمارے چاہنے والوں کو جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی میں شیخ خاندان رو برادری کا ادنا تھا. پہلے ناظم رہ چکا ہوں، چیئرمین ہوں. صحیح. جی جی. اچھا سر، تو آتے ہیں آپ کے سیاست والے تھوڑا پہلو پر، کیونکہ عوام کے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں. آج کل سیاست ورڈ کو نیگیٹو طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. جی جی. جبکہ چھوٹے چھوٹے دوست اب خود آپس میں بیٹھتے ہیں، اگر کسی کا کام نہیں ہوتا تو اس سے کہتے ہیں کہ یار دیکھو میرے ساتھ سیاست کرو. تو اس ورڈ کو کیوں بیک ورڈ کر کے استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا وجوہات ہے سیاست کے بعد؟ کیونکہ ہمارا جو سیاسی حساب سے اس کی میننگ جو ہے نا ہم نے غلط استعمال کر دی ہے. سیاست کو ہی ہم نے غلط کیا ہے نا، تو سیاست ہمیں گالی بن گئی ہے. صحیح. ہاں یہ بات ہے کہ جو جتنا بڑا سمجھے کہ فراڈیا ہوگا وہ اتنا سیاستدان ہو گیا ہے. اچھا اس حوالے سے. اچھا سر، پہلی سیاست میں بجٹ کم تھی، لوگوں کے کام ہوتے تھے، صحیح، لوگوں کی عزت ہوتی تھی، لوگوں کے لیے احترام ہوتا تھا. اب جب کہ بجٹ بھی بڑھ چکی ہے، لوگ کام بھی نہیں رہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ نیک نیتی نہیں ہے نا. صحیح. کام ہر کوئی اپنے جیب کے لیے سوچ رہا ہے، کام نہیں ہو رہا. اگر لوگوں کے لیے سوچیں گے، کوئی کرنا چاہے گا تو بجٹ ہے ماشاءاللہ. اچھا سر، سیاست دو طریقے کی ہو رہی ہے. ایک ہوتا ہے خود کو، آج کل لوگ کیا کریں، خود کو شیلٹر دینے کے لیے سیاست کا سہارا لے رہے ہیں. ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے عوام کی خدمت کے لیے سیاست میں قدم رکھتا ہے. تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کا سیاست میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی خدمت کی جائے. صحیح. ہاں، ایک خاندانی حساب سے یہ ہمارا وتیرہ رہا ہے، جو لوگوں کے ساتھ ٹچ رہا ہے. صحیح. لوگوں کو ساتھ ٹچ رہنے کے لیے یہ سیاست ہی اہم چیز تھی کہ سیاسی میدان میں بندہ رہے تاکہ لوگوں کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا رہے. اچھا سر، ہمارے پاکستان کی معیشت کا ذمہ وار لوگ سیاست کو ٹھہرا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت جو زیر لیول پہ آ چکی ہے، اس میں دوش کس کا ہے؟ سندھ گورنمنٹ کا یا وفاق گورنمنٹ کا؟ زیادہ تر تو وفاق کا ہے نا. ہاں، کیونکہ باہر کا جو کاروبار ہے، آنا جانا، یہ سارا وفاق کا ہے. وفاق یہ ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کو بھی وہی دے گی، پھر جا کر سندھ گورنمنٹ اپنے پاکستان میں ہی. صحیح. اچھا سر، لیتے ہیں بلدیاتی نظام کو. عام میرا ایک سوال ہے جس کا آپ حصہ بھی ہیں، جس کے آپ یو سی کے چیئرمین بھی ہیں. سر، بلدیاتی نظام پر اگر ہم تھوڑی نظر ڈال رہے ہیں تو یہ بلدیاتی نظام فارن میں، باہر ملکوں میں ایک کامیاب نظام ہے. جی جی. لیکن یہاں پر یہ نظام ہر بار آتا ہے، ناکام ہو کے چلا جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیوں بلدیاتی نظام ناکام؟ اصل میں جو بڑے ہیں نا وہ اس کو چھوڑتے نہیں، کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے اندر نہیں رہے. جو سمجھے
के बल्दियात के ऊपर ही है, वो इसको आज़ाद नहीं करते, वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अच्छा, ताकि ये लोग हमारे नीचे ही रहे ना। अच्छा, खास करके सर एक चेयरमैन को अपने यूसी के लिए क्या करना चाहिए? क्यों चेयरमैन मुंतखब किया जाता है? उसे कौन सा काम दिया जाता है चेयरमैन को? जो बुनियादी काम है वो सारे इनके अंडर में होने चाहिए, चेयरमैन को करने चाहिए। चेयरमैन को करने चाहिए और उसको ये पावर होना चाहिए। अच्छा, ताकि वो करना चाहे वो कर तो सके ना। अच्छा। वैसे बातों बातों में हर कोई करना चाहता है, मीन्स पावर होना चाहिए। अख्तियार में नहीं है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि कुछ दिन बाद। आप समझते हैं कि सर आप बुनियादी सहूलियात देने में कितनी हद तक कामयाब हो चुके? मैं कामयाब तो नहीं कहूँगा। अच्छा, हाँ, नहीं, ये समझे 100 में से 10% है। अच्छा चलो, नाज़मी दौर में आपने यहाँ के इलाके की क्या खिदमत की? लोगों को आपकी तरफ से क्या मिला? क्योंकि लोग इसलिए आपको सपोर्ट करते हैं ताकि आगे चलकर आप उनको सपोर्ट करें। तो जो आपका नाज़मी वाला दौर था, उस बारे में आप बताएं, क्या नाज़मी वाले दौर में आप पावर से मुतमिन थे? हाँ, इससे तो ज़्यादा था। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और एक बंदा हमारे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है, सही, यूसी का नहीं है। हमें सिर्फ वहीं से बजट आती है सिंध गवर्नमेंट से, वो हमने खर्च करनी होती है, बकाया ना कोई। अच्छा, उसी टाइम आपने इस इलाके की क्या खिदमत की ताकि लोगों को हम दिखाएं जी जी कि ये खिदमत आप कर चुके हैं? आप मकसद भी हमारा ये होते हैं, हम यहाँ इतनी दूर आपसे आते हैं तो आवाम को भी ताकि हम बता सकें कि सर आपने नाज़मी वाले दौर में इस इलाके को क्या क्या दिया? हमने स्कूल बनवाए, 7 से 8 स्कूल बनवाए, वो स्कूल थे और रास्ते बने, बिजली के गाँव मंजूर हुए, तो बिजली मिली, सही, ये हुआ। बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी फेवरेट शख्सियत जिससे आप मुतासिर थे हैं, या वो ऐसी शख्सियत जिसे हम कह सकते हैं कि ये सियासतदान है, ये अवाम के लिए खिदमत कर रहा है, आपकी नज़र में ऐसा कोई शख्स? आकिब खान जतोई। आकिब खान जी, गुलाम रसूल जी। अच्छा। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के नाज़म रहे। सही, वो बेहतरीन शख्सियत है मेरे हिसाब से। अच्छा सर, आप जीडीए का भी हिस्सा है? जी जी सर, आप समझते हैं कि यहाँ पर जो भी पार्टी जीडीए हो या नून लीग हो या काफ लीग हो या पीटीआई हो, तो आप समझते हैं कि आपने अपोजिशन में इस पार्टी को जो चुना कि मुझे अपोजिशन में इस पार्टी से काम कराए, आप इस पार्टी से मुतमिन हैं जीडीए से कि जीडीए में इतनी वो ताकत है जो अवाम के मसले मसाइल हल कर सके? नहीं, अभी नहीं रही, अभी नहीं रही ताकत वो। जो ये समझे राब्ता जो है ना वो कट गया है। अच्छा, सही। हाँ, राब्ते के आपका नहीं होगा जो कुछ नहीं होगा ना। अच्छा सर, जमींदारी के हवाले से आप हमें बताएं कि आप जमींदार भी हैं। सर, आप समझते हैं कि आजकल जो रेट फिक्स किया जा रहा है, इस हिसाब से जमींदार या हारी बेहतर लाइफ सर्वाइव कर सकेगा? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये समझिए कि जो इनपुट है वो अपनी मर्जी से करते हैं। अच्छा ही। जो हमारा आउटपुट है वो भी अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी से जो उनकी जेब से निकलता है वो देते हैं, और जो लेना होता है वो ले लेते हैं। अच्छा, फिर भी आपके ज़हन के हिसाब से रेट कितना मुकम्मल होना चाहिए, या गवर्नमेंट में आपको सब्सिडी कितनी देनी चाहिए? क्योंकि आप वो भी हमें बता सकते हैं। हमारा मकसद भी यही है कि आप आवाम के लिए बात करें ताकि वो हम आप वाली बात ऊपर तक पहुँचाएं। तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट से सब्सिडी या रेट कितना होना चाहिए? रेट तो देखे ना, अगर खाद का रेट बढ़ाया है तो भाई गंदम का रेट भी बढ़ाना चाहिए, कपास का रेट भी बढ़ाना चाहिए। अगर आप इतने में गंदम नहीं खरीद सकते तो वो खाद और पेस्टिसाइड उसको कम करें ना, वो अपनी मर्जी से बैलेंस करें। आप बढ़ा नहीं सकते तो उससे थोड़ा कम करें ताकि उनके हाथ में है ना, खाद उनके हाथ में है, डीजल उनके हाथ में है, पेस्टिसाइड उनके हाथ में है, वो करते हैं अपनी मर्जी से, उसको बढ़ाते रहते हैं। अगर देखें गंदम की बोरी जा रही है अभी तो कोई रेट फिक्स नहीं हुआ, सही, वो कह रहे हैं भाई 7,200 की बेचेंगे। अगर 7,000 की बेचेंगे
भाई ठीक है, हाँ भाई, खाद खाद को थोड़ा कम कर दे ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए, बैलेंस हो जाए, कोई 5 रुपए बचत तो हो जाए। बच्चे तो अच्छा सर समझते हैं कि फिर इसका आगे चलकर रिएक्शन क्या होगा? क्या ये असर मुकम्मल हारी पर पड़ेगा या जमींदार पर? दोनों पर। अच्छा हाँ, दोनों पर पड़ेगा ना। जाहिर है जमींदार की मजबूरी है, वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही। हारी जो है वो देखेगा चलो भाई ये नहीं है तो दूसरा धंधा कर लेगा। जमींदार तो जमीन में फंसा हुआ है ना। सही। अच्छा सर, जिंदगी की ऐसी ख्वाहिश जो रह गई हो? अल्लाह औलाद दे। अच्छा, सियासत में आपकी ख्वाहिश क्या है? मतलब आप क्या सियासत में क्या करना चाहते हैं? सियासत में किस चीज़ तक पहुंचना चाहते हैं? नहीं, सियासत में ही लोगों की खिदमत ही, हाँ वो होनी चाहिए। खिदमत के लिए भी पावर होना चाहिए, पावर सीट होनी चाहिए। जी जी वही। तो इस हवाले से मैंने सवाल किया कि आप सियासत में क्या करना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से ऐसा थैंक यू आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, एक और सवाल नौजवानों के हवाले से। सर कहते हैं कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल होते हैं, ये हकीकत भी है। सर हम समझते हैं कि आजकल का नौजवान जिस जगह पर होना चाहिए उसी जगह पर नहीं है, क्योंकि एक नौजवान को आगे बढ़ने के लिए एक तो एजुकेशन की ज़रूरत होती है, वो एजुकेशन भी नहीं है, और आजकल मंशियात का इतना असर हो गया है कि हर नौजवान, पहले तो मंशियात कम जगह पर मिला करती थी, लेकिन अब तो हास्टल यूनिवर्सिटी तक जाके पहुँची है। तो आप समझते हैं कि इससे हमारे पाकिस्तान के नौजवानों का क्या होगा? मुस्तकबिल तबाह होगा। अगर मुस्तकिल तबाह होगा तो उसका असर किस पर पड़ेगा? आवाम पर। आवाम पर पड़ेगा तो आप पर भी पड़ेगा, मेरे पर भी पड़ेगा, हर चीज मुल्क पर हर चीज खत्म होगी ना। ये मनुष्य तबाही है ना। बिल्कुल सही। हर हिसाब से आपकी सेहत भी खराब होगी, आपकी मैशत भी खराब होगी, हर चीज खराब होगी। सही। सर यकीन करें, आपसे गुफ्तगू करने में इतना मज़ा आ रहा है, लेकिन मेरे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है, टाइम के हिसाब से हमें सवाल करने पड़ते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ से, क्योंकि हम हर नोटेबल शख्सियत से लास्ट में एक मैसेज डिलीवर करवाते हैं, तो लास्ट में सर अपने चाहने वालों के लिए, अपने वोटर्स को, अपने कलीग्स को या सियासतदानों को आपका मैसेज क्या होगा? मैसेज यही होगा कि तालीम लें और ये कॉपी कल्चर को ख़त्म करें। ज़बरदस्त। चाहे मैट्रिक हो, चाहे इंटर हो, चाहे बीए हो, सही माना में डिग्री होनी चाहिए, वो ही आपके काम आएगी, वही आपका मुस्तकबिल होगी। और सियासतदानों के लिए? सियासतदानों के लिए भी ईमानदारी करते हैं कि सर ना करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम कम होता है। कम टाइम में से आप बहुत सारे सवाल जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। नाज़रीन, आप जो सुनना चाहते थे वो हमने सारे सवालात आपकी तरफ समाप्त कर दिए गए। तो लास्ट में मुझे और आज की पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल विराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।